हाँ जी स्टूडेंट्स, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੈਂਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੈਂਸ ਦੇ ਫੋਕਸ ਤੇ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ। ਆ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਹੈ, ਲੈਂਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫੋਕਸ ਤੇ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਆ ਸੀ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਏ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਂਸ ਦੇ ਫੋਕਸ ਤੇ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਰਜ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਤੇ ਇਰੈਕਟ ਇਮੇਜ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਲੈਂਸ ਨੂੰ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਫ ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮਡ ਆਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਜ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਤੇ ਇਰੈਕਟ ਇਮੇਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੀ ਕੈਪੀਟਲ। ਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਵਿਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਨਾ। ਐਟ ਅ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन होता है ਆਪਾਂ जिस दूरी ਤੇ नॉर्मली ਆਪਾਂ किताब रख के पढ़ते हैं, ठीक है ना। आ डिस्टिंक्ट विजन है तकरीबन 25 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। सो 25 सेंटीमीटर के करीब दूरी जिन्होंने ਆਪਾਂ कैपिटल डी ਨਾਲ लिखते हैं, ठीक है ना। उस दूरी ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਮੇਜ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਸੀ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੀਟਾ। ਆ ਐਂਗਲ ਬੀਟਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੀਏ ਜਿੱਥੇ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ, ਲੀਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੀਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਵਿਜ਼ਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਫਾ ਆ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਈ ਪੈਰਲਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਫੋਕਸ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਰੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਈ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆ ਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਥ ਸੇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਰੇਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਏ ਬੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਆਬਜੈਕਟ, ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਐਟ ਦਾ ਲੀਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਵਿਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਲਫਾ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੀਟਾ ਕਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਅਲਫਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਮੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਐਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਐਫ ਮਤਲਬ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਏ ਸੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਟਾ ਓਵਰ ਅਲਫਾ। ਬੀਟਾ ਮਤਲਬ ਐਂਗਲ ਸਬਟੈਂਡਡ ਬਾਏ ਇਮੇਜ ਐਟ ਦ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ to the angle subtended by object at the optical center when object is placed at the least distance of distinct vision where image is formed, ठीक है। So where image is formed at that distance, if the object is placed, it makes an angle alpha with the optical center, ठीक है। So therefore magnifying power is beta over alpha। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਂਗਲ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੈਨ ਬੀਟਾ ਨੂੰ ਬੀਟਾ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਨ ਅਲਫਾ ਨੂੰ ਅਲਫਾ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ।
इस करके बीटा कितने बराबर होएगा, देखो इतने आ दूरी ए डैश पी डैश ओवर ए डैश सी। ठीक है, इसी तरह अल्फा कितने बराबर होएगा, ए डैश पी ओवर ए डैश सी। ठीक है, हम देखो ए डैश पी जो ए बी के बराबर ही है, तो करके इन्हों ए बी नाल रिप्लेस कर देंगे, ए बी ओवर ए डैश सी। सो मैग्नीफाइंग पावर विच इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा कम्स आउट टू बी, बीटा ओवर अल्फा देखो इनू लिखांगे ए डैश बी डैश ओवर ए डैश सी विच इज डिवाइडेड बाय ए बी ओवर ए डैश सी। इट्स कम्स आउट, आ देखो डिनोमीनेटर दोनों का कटिया जाएगा तो अपने को आ जाएगा ए डैश बी डैश ओवर ए बी। ठीक है ना, ये चीज़ आ जाएगी मैग्नीफाइंग पावर। सो मैग्नीफाइंग पावर ए डैश बी डैश की हो गया साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इनू एच डैश लिखते हैं, साइज ऑफ द इमेज इनू एच लिखते हैं, तो अपने को मैग्नीफाइंग पावर जी है वो आ गई एच डैश ओवर एच। ठीक है ना, विच इज इक्वल टू ए डैश बी डैश ओवर ए बी। क्लीयर। हुण फर्दर देखो इहदे विच इस चीज़ को तुसीं ध्यान दिओ। ठीक है, देखो आ जी अपने को मैग्नीफाइंग पावर एच डैश ओवर एच आई है, इनू आप वी बाई यू के बराबर लिखते हैं तो एम के बराबर होती है कन्वैक्स लेंस के केस, क्योंकि कन्वैक्स लेंस है, कन्वैक्स लेंस के केस मैग्नीफाइंग पावर साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होंदा है, उन्होंने आप स्मॉल एम नाल लिखिया सीगा ते वो वी बाई यू होंदी है लेंस के केस दे विच। ठीक है ना, ये चीज़ आप कर चुके हैं ऑलरेडी, तुसीं लेंस वाला मैग्नीफाइंग पावर वाला लैक्चर देख सकते जे दोबारा। ठीक है, हुण तुसीं देखो तुसीं देख रहे जे कि वी डी के बराबर है पर ये लैफ्ट साइड से है, रेज इधरों एनू जा रही ने तां करके इधरले पासे डिस्टेंस जिहड़े नैगेटिव लवांगे। ठीक है, सो एम इज इक्वल टू वी बाई यू इज इक्वल टू माइनस डी हो गया, यू भी इधरले पासे है तां करके माइनस यू लिखांगे, इस करके एक बन गया डी बाई यू। सो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू कितनी आ गई, डी बाई यू। ठीक है, आंसर आ गया एक बार इनका। जे आप फोकल लेंथ में इंट्रोड्यूस करना है तो आप लिखांगे लेंस के केस लेंस फार्मूला अपन पता है -1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ होता है। ठीक है, एक तो रिजल्ट ये आ गया। दूसरे रिजल्ट जो आप फोकल लेंथ इंट्रोड्यूस करनी तो आप लेंस फार्मूला -1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ लिखांगे। तो इस केस जिन्हों आप पुट करिए इनकी वैल्यूज -1 बाय माइनस यू, क्योंकि यू अपने को नैगेटिव है, तो प्लस 1 बाय वी की वैल्यू माइनस डी हैगी है। ठीक है, तो इक्वल टू 1 बाय, हम देखो आप इत्थे फोकस किहड़ा काम आया, फोकस इहदे च राइट हैंड साइड वाला काम आया है। ठीक है ना, तां करके आ दूरी आप लवांगे ये पॉजिटिव है, तां करके 1 बाय एफ ही लिखांगे। ठीक है ना, इहदे माइनस नहीं लिखा क्योंकि ये फोकस अपने काम नहीं आया। ठीक है ना, रेज उधर गई ने। ठीक है ना, राइट हैंड साइड से गई तां करके 1 बाय एफ लिखांगे। हम देखो ये बन गया 1 बाय यू, इन्हें इतने सिंपलीफाई कर दें आप, चलो इतने कर लें आप 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी आ गया। ठीक है, हम डी नाल मल्टीप्लाई कर दो दोनों पासे, डी नाल मल्टीप्लाई करांगे तो ये बन जाएगा डी बाई यू इक्वल टू डी बाई एफ प्लस 1। ठीक है, दोनों पासे डी नाल मल्टीप्लाई करता। और मैग्नीफाइंग पावर की डी बाई यू, सो डी बाई यू इनू आप एम लिख लांगे, एम इज इक्वल टू डी बाई यू, इसकी वैल्यू कितनी बन गई डी बाई एफ प्लस 1। ठीक है, यही एम के बराबर है, इनू आप एम लिख लें। सो डी बाई यू ये वैल्यू सारी जी है आंसर अपना आ गया। ठीक है, तो आही आंसर आ गया। सो 1 प्लस डी बाई एफ। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर जी है वो 1 प्लस डी बाई एफ अपनी आ गई जे आप फोकल लेंथ इंट्रोड्यूस करनी है। ठीक है,
हाँ जी, देखो जो पहला केस आप किया ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ m = d/u ਆਇਆ। ਫਰਦਰ ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ m = 1 + d/f ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਲੀਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਵਿਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਮੇਜ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਪਲੇਸਡ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ f ਐਂਡ c। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੋਰਮਲ ਵਿਜ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਫੋਕਸ ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫॉर ਨੋਰਮਲ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਫॉर ਨੋਰਮਲ ਵਿਜ਼ਨ ਵੈਨ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਐਟ ਫੋਕਸ, ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਫੋਕਸ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆ ਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਫੋਕਸ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਪੈਰਲਲ ਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਸੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਡਿਵੀਏਟਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਦਾ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ -1/u + 1/v = 1/f ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ u ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਸੋ -1/-u प्लस वन बाय ए इमेज कितने बन रही है इन्फिनिटी ते, ठीक है ना, इन्फिनिटी इतने लिख दो। सो 1/∞ 0 हो जाएगा = 1/f, क्योंकि राइट हैंड साइड वाला फोकस आप यूज कर रहे हैं। सो अपने कोल इतने आ 0 हो गया, आ माइनस 1/u = 1/f आ गया। ठीक है, सो 1/u = 1/f आ गया। ठीक है ना, तो इतने भी अपन पता चलता है u f के बराबर है। ठीक है ना, जिन्होंने रेसिप्रोकल ले लिए u जो फोकल लेंथ के बराबर, इतना भी पता चल रहा है। फर्दर देखो इन्हों d नाल मल्टीप्लाई करो, सो d/u = d/f आ गया। सो d/u मैग्नीफाइंग पावर अपनी d/u है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट सी, वो d/u आया सीगा। सो d/u नूं आपां m लिख लांगे। सो m की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस d/f आ गई। ठीक है, सो d/f अपने को मैग्नीफाइंग पावर आ गई, इन्हों आप मैग्नीफाइंग पावर लिख दो। सो ये आ गई d/f फॉर नॉर्मल विजन। ठीक है ना, नॉर्मल विजन के केस आंसर आ गया। तो डिस्टिंक्ट विजन के लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आ देखो आ केस दे विच लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के केस दे विच ये आंसर आ जाएगा मैग्नीफाइंग पावर d/u। तो जो फोकल लेंथ इंट्रोड्यूस करांगे 1 + d/u आ जाएगा। सो इहदे विच फोकल लेंथ आप इंट्रोड्यूस की ऑलरेडी। ठीक है, सो अपने को d/f आंसर इत्थे आ रहा है। ठीक है, हाँ जी, देखो न्यूमेरिकल है इहदे नाल दा अ मैग्नीफाइंग ग्लास हैज फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है। सो f = 5 सेंटीमीटर लिख लेंगे आप। कैलकुलेट इट्स मैग्नीफाइंग पावर फॉर स्लाइटली स्ट्रेन्ड आई। इहदा मतलब की है, देखो स्लाइटली स्ट्रेन्ड आई का मतलब है कि अपनी अख ते थोड़ा जिहा स्ट्रेन पै रहा। स्ट्रेन कदों पै रहा? जो आप चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, सो स्ट्रेन्ड आई का मतलब है कि इमेज इज फॉर्मड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इहदा मतलब जो है वो v = d = 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो आ चीज़ लिखने का मतलब आ है। हुण आपां नूं पता है मैग्नीफाइंग पावर किहदे बराबर हुंदी है 1 + d/f। ठीक है, सो 1 + 25/5 हो जाएगा। तो 25/5 5 आ गया, 5 तो 1 6 सेंटीमीटर से मैग्नीफाइंग पावर उहदी होगी जी 6 सेंटीमीटर नहीं सॉरी 6 टाइम्स। ठीक है ना, 6 टाइम्स मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी, मतलब 6 गुणा इमेज आपां नूं वड्डी नज़र आएगी। ठीक है, सो मैग्नीफाइंग पावर इज 6 टाइम्स। सो 6 टाइम्स मतलब ऑब्जेक्ट नालों 6 गुणा वड्डी इमेज आपां नूं नज़र आएगी। ओके, हाँ जी, देखो नैक्सट न्यूमेरिकल है अ मैग्नीफाइंग ग्लास हैज फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी। हुण जो फाइनल इमेज इन्फिनिटी ते बनती है तो मैग्नीफाइंग पावर का आप फार्मूला देखा सीगा वो सीगा d/f। ठीक है, सो d/f है, सो d की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होंगी है तो f की वैल्यू इतने 5 दी है। सो मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ गई 5।
ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲੈਂਸ ਜਿੰਦੀ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ 5 ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਪਾਵਰ 5 ਟਾਈम्स ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 5 ਟਾਈम्स ਦਾ 5 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 5 ਟਾਈम्स ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਲੈਂਸ, ਮਤਲਬ 2 ਲੈਂਸਿਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇਕਡ ਆਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਐਸੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਲੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲੈਂਸ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸਿੰਪਲੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਪੀਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਈ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਆਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਏ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਬਜੈਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲੈਂਸ ਦੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਤੋਂ ਪਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਰਟਡ ਇਮੇਜ ਫਿਰ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਹੈ ਵੱਡਾ। ਵੱਡੇ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਈ ਪੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਐਕਸੀਅਲ, ਮਤਲਬ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਕੋ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੈਕ ਐਂਡ ਪਿਨ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫੋਕਸ ਹੋ ਸਕੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੈਕ ਐਂਡ ਪਿਨ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ FO, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ FO ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ FO ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਪੀਸ ਦਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ FE ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਦੂਰੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ FE ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਦੇਖੋ ਆਹ ਰੇ ਆਈ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ, ਇਹ ਰੇ ਫੋਕਸ ਚੋਂ ਲੰਘੀ, ਆਹ FO ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ FO ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ FO ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ C1 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ C1 ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ C2 ਲਿਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ C1 C2 ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ। ਸੋ C1 ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਆਹ AB ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ A', ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ A', ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ AB ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਮੇਜ ਕੈਸੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਜ ਇਨਵਰਟਡ ਐਂਡ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ। ਰੀਅਲ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਮੇਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਕ ਐਂਡ ਪਿਨ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ F ਤੇ ਇਹਦਾ C, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਇਹ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ A', B', ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਬਿਟਵੀਨ F ਐਂਡ C। ਸੋ FE ਐਂਡ C2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਬਿਟਵੀਨ F ਐਂਡ C ਆਫ ਆਈ ਪੀਸ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ। ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਪੀਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਇਹ ਫੋਕਸ ਚੋਂ ਲੰਘੀ,
ठीक है, इनू दूजे पासे प्रोड्यूस किया। आर है जी सी चो आई वो अनडिवीटेड जाती है, तो इत्थे आपां नूं फाइनल इमेज जी फॉर्मेशन होएगी जिन्हों आप कहांगे ए डैश बी डैश, ट्वाइस आप लिख देंगे ए डबल डैश, इत्थे ए डबल डैश पा देंगे तो बी डबल डैश, ठीक है, ए डबल डैश तो बी डबल डैश। इन्हूं थोड़ा जिहा मैं इत्थे लिख देना एफ ओ नूं थोड़ा जिहा, चलो आप आ पॉइंट जिहड़ा ए डबल डैश है, ठीक है, एफ ओ दा आपां लिखिया ही होया ऑलरेडी। सो ए डबल डैश बी डबल डैश फाइनल इमेज फॉर्मेशन अपन हो रही है। फिर समझ लो, ठीक है ना, आ रे जी आई है, ये रे इधर गई फोकस चो, इनू इधर प्रोड्यूस किया, आ रे जी अनडिवीटेड है, इन्हू प्रोड्यूस किया, इतने जाके मिलियां आफ इमेज फॉर्मेशन आई। सो देखो आ ऑबजैक्ट है, उनकी इनवर्टेड तो वैरी लार्ज हाईली मैगनीफाइड इमेज जी है मिलती भी है, ठीक है ना। सो वर्चुअल enlarged and highly magnified and inverted image is formed, ठीक है ना, जिन्हों आप enlarged highly magnified कह देंगे। सो virtual highly magnified and inverted final image is formed with the help of these two lenses in the compound microscope, ठीक है। हुण देखो आ जी दूरी है, इहदे तो लैके इहदी जी इमेज बनी है उन्होंने वी ओ ना लिखा, क्योंकि ऑबजैक्ट ने बनाई है, ऑबजैक्टिव ने बनाई है, ये ऑबजैक्टिव लैंस है तां करके वी ओ लिखांगे। तो आ दूरी जी है ये इस लैंस लई ये ऑबजैक्ट की दूरी बन गई, तां करके इन्हूं यू ई लिखिया, ठीक है। सो आ जिहड़े टर्म्स तुसीं समझ लो, आ वी ओ क्योंकि ऑबजैक्टिव लैंस की इमेज की दूरी है, तो आ दूरी जी बन गई इत्थों लैके तक यू ओ बन गई, इन्नी दूरी, ठीक है, ये यू ओ वी ओ। हम देखो दो लैंसा के विचली दूरी जी है वो वी ओ प्लस यू ओ है, ठीक है ना। सो दो लैंसा के विचली दूरी वी ओ प्लस यू ई होंगी है, जी कि लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की पाइप की लेंथ भी आप कह सकते हैं दी, ठीक है, इनू लेंथ नाल भी लिख सकते हैं आप इहदी, ठीक है। हाँ जी, होर गल्लां समझ लो, जिहड़ा ऑबजैक्टिव लैंस है उनका फोकल लेंथ तुसीं देख ही रहे जो, उसकी फोकल लेंथ छोटी है, इहदी फोकल लेंथ वड्डी है, ठीक है ना, कंपैरेटिवली। तो इहदा अपर्चर भी छोटा है, इहदा अपर्चर भी जिहड़ा वो वड्डा है, ठीक है। सो फोकल लेंथ ते अपर्चर स्मॉल दा हुंदा ऑबजैक्टिव लेंस, ते आई पीस लार्ज फोकल लेंथ ते कंपैरेटिवली लार्जर अपर्चर का हुंदा है, ठीक है। सो यही इहदा प्रिंसीपल है जो आप सारे डायग्राम च समझाया कि वैन एन ऑबजैक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2F, एफ ते 2F दे विच रखा गया फस्ट लैंस जो ऑबजैक्टिव होंगे, दैन इनवर्टेड मैगनीफाइड एंड रियल इमेज फॉर्म्ड, एंड वैन दिस इमेज एक्ट्स एज एन ऑबजेक्ट फॉर द आई पीस एंड प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई पीस, दैन वी गेट अ हाईली मैगनीफाइड इनवर्टेड एंड वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो फाइनल इमेज जी ए डैश बी डैश जी आपां नूं मिली है वो हाईली मैगनीफाइड, ठीक है, तो इरैक्ट तो वर्चुअल है। इरैक्ट क्यों, क्योंकि इधरले पासे ऑबजैक्ट सीगा, उस पासे इमेज फॉर्मेशन हुई, तो फाइनल इमेज जी आपां नूं मिली है वो इनवर्टेड मिली है ऑबजैक्ट के हिसाब नाल, क्योंकि ऑबजैक्ट इत्थे पिया, ठीक है। सो ऑबजैक्ट के हिसाब नाल दोनों लैंसिस की कंबाइंड जी अपने कोल इहदे मैगनीफिकेशन भी जी मल्टीप्लाई हुई, क्योंकि दो लैंसिस जो लगे होंगे है उदों मैगनीफिकेशन भी जी है उन्होंने कंपाउंड जी हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तां करके अपन हाईली मैगनीफाइड इमेज जी फॉर्मेशन होती है इस पर्टिकुलर केस दे विच, ठीक है। हाँ देखो, तो इत्थों देखने से आपां नूं आ फाइनल इमेज जी है मिल रही है। हुण देखो आप मैगनीफाइंग पावर की गल करनी है, उहदे लई आपां की कीता, ऑबजैक्ट जिहड़ा है उनके बराबर की लेंथ आपां उत्थे बनाती जिथे इमेज फॉर्मेशन हो रही है, जिवें आपां पिछले सिंपल माइक्रोस्कोप च कीता सीगा कि फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इस पर्टिकुलर केस च भी जी फाइनल इमेज बनेगी, क्योंकि उस तरह का इहदे लई आपां उही केस है सिंपल माइक्रोस्कोप वाला आले लैंस लई इकल्ले लई आपां देखीए तां। सो इहदे लई फाइनल इमेज जिहड़ी है वो वी दूरी जिहड़ी है वो डिस्टिंक्ट विजन ते बनेगी, ठीक है। सो उन्नी दूरी ते ही आपां ऑबजैक्ट की लेंथ आपां जदों रखी तां आपां जिहड़ा एंगल इत्थे मिलिया उन्होंने आप अल्फा कहांगे, तो आ एंगल में आप बीटा कहांगे जिहड़ा इमेज बना रही है C2 के नाल, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर आप आई पीस का लैना, क्योंकि इधरों आप देख रहे हैं, ठीक है।
ਹੁਣ ਆਹ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ C2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਤੱਕ ਇਹ 20 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ VE ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, VE ਮਤਲਬ ਆਈਪੀਸ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ E ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ V ਲਿਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੀਟਾ ਓਵਰ ਅਲਫਾ। ठीक है ना, सो बीटा और अल्फा एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट ऑप्टिकल सेंटर टू द एंगल सबटेंडेड बाय, इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आईपीस टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आईपीस व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, सो तां करके बीटा और अल्फा, हुण बीटा की वैल्यू देखो की इत्थे बीटा की वैल्यू A डबल डैश B डबल डैश ओवर A डैश C2 उस तरह। ठीक है ना, टैन थीटा आप ले लाँगे, स्पेन थीटा स्मॉल टैन थीटा नूं थीटा लिख देंगे तो टैन थीटा की होंदा बेस ओवर बेस। ठीक है ना, हाइपोट परपेंडिकुलर ओवर बेस होंदा है। ठीक है ना, वही चीज़ आप यूज़ की, फिर लिख देंगे थीटा स्मॉल, तां करके आप ये चीज़ां लिख देनियां A डबल डैश C2। ठीक है, हुण अल्फा की वैल्यू की है A डैश P, आ पॉइंट आप P लिखा A डबल डैश P ओवर A डबल डैश C2। ठीक है, हुण देखो A डबल डैश P2 जिहड़ा है वो AB के बराबर ही है, A डबल डैश P जिहड़ा है वो AB के बराबर है, तां करके इहनूं AB ओवर A डबल डैश C2 लिख लांगे। हुण मैगनीफाइंग पावर जिहड़ी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वो की बन गई, देखो बीटा ओवर अल्फा, बीटा की वैल्यू आप बोलांगे ओवर A डबल डैश C2। ठीक है, डिवाइड बाय दिस, डिवाइड बाय AB ओवर A डबल डैश C2। A डबल डैश C2 खत्म हो जाएगा तो मैगनीफाइंग पावर जिहड़ी है वो अपने कोल की आ जाएगी, देखो A डबल डैश B डबल डैश ओवर AB। ठीक है, हुण इस चीज़ को तुसी मल्टीप्लाई तो डिवाइड कर दो A डैश B डैश के नाल, क्योंकि आ भी अपने को एक चीज़ हैगी है जिहड़ी इहदे लई इमेज फॉर्मेशन हुई सी, जिहड़ी इहदे लई ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, उहदे नाल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना उहदी लेंथ दे नाल A डबल। ठीक है, सो ये की बनया देखो A डबल डैश B डबल डैश ओवर A डैश B डैश इंटू A डैश B डैश ओवर AB। हुण इहनूं ध्यान नाल देखो तुसीं, जिहड़ा ऑब्जेक्टिव है आ ऑब्जेक्टिव है उनकी इमेज का साइज है A डैश B डैश तो ऑब्जेक्ट का साइज है AB। सो ऑब्जेक्टिव की मैगनीफाइंग पावर उन्होंने आप लिखांगे MO दे नाल, वो कितने बराबर है A डैश B डैश ओवर AB। ठीक है ना, साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हुण देखो इहदी वैल्यू जिहड़ी है ਆਪਾਂ V ਤੇ U इंट्रोड्यूस करिए तो वो की बनेगी, देखो ਇਹਦੇ ਚ V ਤੇ U इंट्रोड्यूस करते हैं ਆਪਾਂ, देखो ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ V इंट्रोड्यूस करिए तो की देखो ਇਹਦੀ इमेज इधर बन रही है VO पॉजिटिव, ऑब्जेक्टिव पिछले पासे UO नैगेटिव। सो ये जिहड़ी है वो VO डिवाइड बाय माइनस UO भी लिखा जा सकता है, अगे आप किते इहदे नाल दे मैगनीफाइंग पावर विच। सो अपने कोल MO की वैल्यू जिहड़ी आ गई माइनस VO ओवर UO। ठीक है, तो आ वैल्यू है। ठीक है, हम देखो इत्थे मैगनीफाइंग पावर कितने बराबर आ रही MO तो ये ME बनेगा, देखो ME के है मैगनीफाइंग पावर ऑफ द आई पीस, उन्होंने ME लिखांगे। ME की होएगा, देखो उनकी इमेज बन रही A डबल डैश B डबल डैश से। ठीक है, सो A डबल डैश B डबल डैश तो उनका ऑब्जेक्ट है A डैश B डैश से, A डैश B डैश से। ठीक है, हुण इहदे लई ये दोनों चीज़ां उधरले पासे बन रही ने, इक्को पासे आ दोनों। ठीक है, तो ये आप लिख लीए माइनस V तो ये लिख लीए माइनस UE। सो
v बाय यू ई हो गया, ठीक है। सो v बाय यू ई हो गया। हुण देखो मैं इत्थे लिखण लगा इहनूं, अपने को मैगनीफाइंग पावर जिहड़ी है वो आ चीज़ की है एम ई इंटू एम ओ। सो मैगनीफाइंग पावर जिहड़ी है वो एम ई इंटू एम ओ आई है, ठीक है। इसे लिए आप गल कर रहे थे कि जो दो लेंस लगे है तो मैगनीफाइंग पावर मल्टीप्लाई होगी, देखो ठीक है। सो दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो अपने कोल फाइनल रिजल्ट की आ रहा, देखो एक तो आ चीज़ आ रही है तो एक आ चीज़ आ रही है, ठीक है। हाँ जी देखो जगह घट सी अपने को थोड़ी, इसलिए आप इनू रब करता। ਹੁਣ देखो जी फाइनल इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से हो रही है, तो वी नू आप डी भी लिखांगे, सो डी बाई यू ई कह लाँगे, ठीक है। ਹੁਣ देखो आई पीस ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ यूज़ करिए तो अपने को 1/u माइनस 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f ये लेंस फार्मूला, ठीक है। इन्हों आई पीस ਲਈ ਆਪਾਂ यूज़ करना है, ये आई पीस ਲਈ की बनेगा देखो माइनस 1/u ई प्लस 1/v, v डी के बराबर है, चलो v लिख दें आप इक्वल टू 1/f ई, ठीक है ना। फाइनल इमेज आप वी तो ही रखी तो करके वी ई लिखने की लोड़ नहीं सी इत्थे। हुण देखो इहदे लई ऑब्जैक्ट जिहड़ा खब्बे पासे है, ठीक है, तो नैगेटिव माइनस 1/माइनस यू ई, इमेज भी खब्बे पासे है प्लस 1/माइनस डी, ठीक है। सो इनका फोकस सज्जे पासे वाला यूज होया है, सो 1/f ई आ फोकल लेंथ है, ठीक है। ए एफ ई है फोकल लेंथ है, ठीक है। हुण देखो ये बन गया 1/u ई माइनस 1/d इज इक्वल टू 1/f ई, ठीक है। हुण देखो इनू 1/u ई इज इक्वल टू 1/f ई प्लस 1/d लिख लीए। हुण d नाल मल्टीप्लाई कर दो सारे पासे, ठीक है ना, डी नाल मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बाय डी, डी नाल मल्टीप्लाई करके की बनेगा डी बाई यू ई इज इक्वल टू डी बाई एफ ई प्लस 1, डी बाई डी 1 हो जाएगा। हुण तुहानूं याद होएगा सिंपल माइक्रोस्कोप च आपां लिखिया सीगा कि मैगनीफाइंग पावर जिहड़ी है वो हुंदी डी बाई यू के बराबर, ठीक है। सो इत्थे डी बाई यू ही आया, सो डी बाई यू यही मैगनीफाइंग पावर हैगी है इनकी इस पर्टिकुलर केस की, ठीक है। सो ये इनके बराबर आ गई, ठीक है। हाँ जी इत्थे भी देखो जी मैगनीफाइंग पावर ऑफ द आई पीस अपने को डी बाई यू ई आई, सो डी बाई यू ई की वैल्यू अपने को डी बाई एफ ई प्लस 1 आ गई, तो आ वैल्यू अपने को आ आई है, तो अपने को मैगनीफाइंग पावर दोनों का प्रोडक्ट सीगा एम ओ इंटू एम ई है सी, ठीक है। सो एम ओ आ गया माइनस इनू माइनस वी ओ बाई यू ओ लिख लो इंटू दिस डी बाई एफ ई प्लस 1, ठीक है। सो आ मैगनीफाइंग पावर का सारा फार्मूला बन गया अपने को, ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस वी ओ ओवर यू ओ इंटू डी बाई एफ ई प्लस 1, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन, ठीक है। हुण जेकर के आ दूरी बहुत छोटी है, आ यू ओ जी है ये बड़ी छोटी दूरी है, तो जी पाइप की लेंथ है ना वो वी ओ के बराबर ही रख ली जाती है, ठीक है। सारी जी है माइक्रोस्कोप की, तो इनकी थां ते कैपिटल एल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो फिर आप इनू कैपिटल एल लिख देंगे वैन ऑब्जैक्ट इज़ वेरी नीयर टू द ऑब्जैक्टिव, उस पर्टिकुलर केस के आप मैगनीफाइंग पावर कह दें माइनस एल ओवर यू ओ डी बाई एफ ई प्लस 1, ठीक है। एल की लेंथ ऑफ द ट्यूब, सो दोनों लेंसिस के विचली दूरी जी है वो लेंथ ऑफ द ट्यूब है,
ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ VO ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਟਿਊਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਦੂਰੀ ਹੈ ਨਾ FO ਤੇ UO ਵੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ UO ਨੂੰ FO ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ -VO over UO D over FE plus 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਰੱਬ ਕਰਤੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਲੀਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨੋਰਮਲ ਵਿਜ਼ਨ ਲਈ। ਨੋਰਮਲ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਮੇਜ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਕਸ ਤੇ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦੂਰੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਬਣੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਲੈਂਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਕਸ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਮੇਜ ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ FO ਬਣ ਗਿਆ, ਆਹ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੈਰਲਲ ਰੇਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਡੇਵੀਏਟਡ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਦੂਰੀ ਆਲਮੋਸਟ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ FE ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ FE ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਆਹ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਲ FE ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਮਾਲ FE ਮਤਲਬ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਆਈਪੀਸ। ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਆਈਪੀਸ ਤੋਂ ਲੰਘੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੋਰਮਲ ਵਿਜ਼ਨ ਲਈ। ਸੋ ਨੋਰਮਲ ਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ -1/UE + 1/V E ਕਹਿ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, = 1/FE ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਬਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਬਜੈਕਟ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ, -1/-UE + 1/∞ = 1/FE, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/UE ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1/FE ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਈਪੀਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ D/UE ਸੀਗਾ। ਹੁਣ UE ਦੀ ਵੈਲਿਊ FE ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ D/FE। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ UE ਦੀ ਵੈਲਿਊ FE ਆਏਗੀ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਸੋ ME ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਂਸ ਦੀ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ME ਜਾਂ MO × ME। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ MO ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀਗੀ VO over UO। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ D/FE। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇੜੇ ਪਿਆ ਬੜਾ ਆਈਪੀਸ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਟਿਊਬ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ FO ਨਾਲ × D/FE। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਹੈ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਪਾਵਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਵੈਰੀ ਨੀਅਰ ਟੂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ then this is the result। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ VO + UE ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਲਮੋਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਨੀਅਰ ਟੂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।